Welcome to Nursing Canvas. Today we are going to discuss a small topic from psychology, that is memory. This topic is very much important for three batches like GNM, BSc, GNM first year, BSc first year, at the same time BPT, physiotherapy student for first year. So let's start. So if you see here, the psychology, the topic is memory. So first of all, we should know from where these words came. So if you see most of the medical terms, it's coming from either Greek or either Latin. So here, this memory also came from the Latin and Greek. Okay. So if you see in this Latin or Greek, what is mean by memory? So in that language, memory means memoria. So see, the memoria. Later on, international language or all over the world we are speaking, commonly speaking language is English. So it's turned to the memory. So memoria to memory. So here if you see memory, it's turned to the memoria. Okay. What is mean by that? So mean by that is mindful or remember. Like if I say something and you are remembering for some more days or few more days or a few years or lifelong. So why you are remembering and how you are remembering, where it is storing, that place is memory. And memory, it is in the part of brain. Okay. So let's say once again, so memory, it's derived from the word is Latin and Greek. For short question, it will be important. So what is mean by that? Memoria. So what is mean by memoria? Memoria is nothing but mindful or remember. Next, if you come here, stages of memory process, how memory process, how it is stored, how information stored in the mind. So that we have to discuss. Okay. So what this is it's a process started with the three stages: sensory input, short-term memory, long-term memory. Now one by one we have to understand. Sensory memory means what? Sensory memory, like all our sensory organ. These all are the sensory organ which collect the information from the external world and put inside us, like in the brain. It is stored in the brain. So like if you imagine a computer, so what will happen? Computer will have a mouse, keyboard, monitor and CPU. So where all the information stored. Now, so how to put inside? You need to put some information in the desktop. So what you have to do? You need a monitor, you need a mouse, you need a keyboard. Same the way from the external world we collect the information. When we need to store in the mind means we need our sensory organ. So that is we call sensory input or stimulus. So that stimulus will comes to the short-term memory. Short-term memory means where it will stay for very few seconds or a few minutes, but it won't stored. Like if you don't practice or if you don't give importance, that things will pass. You will forget. Just an example. Maybe morning when you went for morning walk, you might see many things, but you will not remember everything because you are not paying attention. But you have seen that, but it is not stored because it is there in the short-term memory. And what is mean by long-term memory? When you understand the topic is important or the thing is important, you need to store for further use, then you just turn those things to long-term memory. Like what you do the practice, you do the rehearsal, maybe a dance step, maybe something or some poem or कुछ भी जो कोई एक शायरी भी हो सकता है. अगेन एंड अगेन यू आर प्रैक्टिसिंग. सो क्या होता है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता जाएगा. और एक बार उसमें स्टोर हो गया तो बहुत लंबे समय के लिए रह जाएगा. लाइक एग्जांपल, अगर आप आपके पेरेंट्स का नाम अगर कोई पूछता है तो आपको सोच के बोलने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली इमीडिएटली यू गिव द आंसर बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी. डू यू रिमेंबर इन द स्मॉल एज हाउ मेनी टाइम्स यू प्रैक्टिस? ईच एंड एवरी पर्सन, कोई भी आपसे मिलता है तो आपको पूछता है पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है. अगेन and again they asked, and again you practice. Now it is stored in the long term memory, so you never forget. So this is nothing but our short term memory and long term memory. I hope you understood. Next we will see about the types. So there are different types of memories are there. Few here. So कुछ बेसिस के ऊपर बेस करके हम उसको डिवाइड करते हैं. जैसे लोगों को अगर एक ग्रुप को आप डिवाइड करना चाहते हो, कुछ बेसिस तो होना चाहिए ना, किसमें हम डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे भी तीन बेसिस के ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं. मोस्टली दो है, एक है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और एक होता है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन और एक अदर्स. नाउ एक बाय हर एक को देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, इफ यू सी the first one, there's a sensory memory, short term memory, long term memory. Sensory memory means which will be related to your sensory organs. Short term means as we already discussed here, and long term also just now we discussed. Like if any information which come through the sensory memory, nothing but your sensory register memory also they say. उसके बाद क्या होता है, वो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है. अगर आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसके ऊपर रिहर्सल नहीं करते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपको स्टोर नहीं होगा, तो आप भूल जाओगे. अगर आप इंफॉर्मेशन के ऊपर कंसंट्रेट करते हो और उसको रिवाइज करते हो या रिहर्सल करते हो, तो क्या हो जाएगा, वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा.
फिर उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, कौन सी टाइप का इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसके ऊपर डिवाइड करके भी मेमोरी में डिवीजन होता है। सो एक हो जाता है आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक हो जाता है इम्प्लिसिट मेमोरी। सो एक्सप्लिसिट मेमोरी आपका कौन सी चीज को पकड़ते हैं, जैसे सिमेटिक मेमोरी हो जाएगा, एपिसोडिक मेमोरी हो जाएगा और विजुअल मेमोरी भी हो जाएगा। तो एक बाय एक देखते हैं। जब हम सिमेटिक मेमोरी की बात करते हैं और एपिसोडिक मेमोरी और विजुअल मेमोरी, ये आपकी कुछ रिसेंट चीजेस को पकड़ते हैं। जैसे अगर आप पकड़ लो एपिसोड मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी में जो चीज आपको एपिसोड वाइज याद आता है, जैसे आपका किसी का बर्थडे हो गया, हर रोज आप प्रैक्टिस नहीं करते हो कि इस डेट को मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, इस डेट को मेरा पापा का बर्थडे है, इस डेट को मम्मी का बर्थडे है, आप हर रोज प्रैक्टिस नहीं करते हो। लेकिन जब वो मंथ आ जाता है साल का और जो दिन करीब हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाता है, उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। विजुअल मेमोरी मींस जो हमने देखा है, सोचो आपने लॉन्ग बैक आपने कभी भी बीच पे गया होगा, आपने समंदर देखा, सनसेट या सनराइज देखा होगा, तो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, तो हो गया आपका विजुअलाइज मेमोरी। देन आपका आता है इम्प्लिसिट मेमोरी में आपका हो जाता है रिसेंट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी। सो रिसेंट मेमोरी में क्या हो जाता है, रिसेंट जो अभी आपको पता चला, अभी एक कुछ दिन पहले, लाइक कुछ घंटे पहले और कुछ आवर पहले, मतलब एक दिन के बीचों बीच में और दो एक दिन के बीचों बीच में, उसको हम बोल देते हैं रिसेंट मेमोरी। रिसेंटली हुआ था, हम ऐसे बोलते हैं ना, कब गए थे आप, रिसेंटली गया था, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है या एक हफ्ते, मैक्सिमम 1 हफ्ते पहले की बात है, तो उसको हम बोलते हैं रिसेंट मेमोरी, जो रिसेंटली हुआ है। इमीडिएट मींस जस्ट नाउ हुआ है, लाइक अभी मैं बोलो जस्ट नाउ क्या हुआ है, जस्ट नाउ हमने यहाँ पे देखो हमने मेमोरी के बारे में बात किया था, तो ये अभी हुआ है, इसी वक्त हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इमीडिएट, जस्ट नाउ इट्स हैपेंड, उसको हम बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी, जो इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हुआ। एंड रिमोट मेमोरी मींस जो बहुत पहले हुआ था, जैसे मतलब 1 साल पहले हो गया होगा या 1.5-2 साल हो गया है, उस टाइप के इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर होता है, हम उसको बोलते हैं रिमोट मेमोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार आपको बोलते हैं। तो देख लो, जो ड्यूरेशन के बेसिस में हमारे पास 3 मेमोरी हो जाता है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर 2 इन्फॉर्मेशन आ जाता है आपका, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के ऊपर डिपेंड करके आपका 3 हो जाता है, सेमेटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी एंड विजुअल मेमोरी। उसके बाद इम्प्लिसिट में अगर आप आ जाओगे, फिर आपको 3 मिल जाएगा, रिसेंट, रिमोट, इमीडिएट। देन आपको मिलेगा रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव इज नथिंग बट ऑल टुगेदर वी कैन से रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी, एंड दिस ऑल टुगेदर वी कैन से इट्स ऑल प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, नथिंग एल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फर्स्ट ईयर बीएससी, फर्स्ट ईयर जीएनएम एंड फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए। एक शॉर्ट टेस्ट है और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोस्टली ये जो वर्ड कहाँ से लिया गया है, उसका मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट में आ जाता है, और मतलब शॉर्ट आंसर में, एमसीक्यू में, और जो टाइप्स है ये मोस्टली शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।